Hi, all the students who are taking CUET this year. Welcome to this channel Icon Says Cat. My name is Anil Chaudhary and I'm going to be a coach for English language. Students, when we talk about CUET, besides the domain subjects, there are two important papers जो students को crack करने हैं. So one is English. हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और किसी भी कोर्स में अप्लाई करें, वन लैंग्वेज जो कॉमनली सभी स्टूडेंट्स लेते हैं, दैट हैपन्स टू बी इंग्लिश. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पेपर इज जनरल टेस्ट, in which questions based on maths, reasoning and GK are included. And ये जो चार subjects हैं, they actually become our areas of expertise. For the last 20 years, we have been coaching the students for these subjects. और ये जो video series हम लोग आज start कर रहे हैं, this is actually going to help you a lot in scoring high in CUET. So students, today we are going to start with English and very soon we'll be launching a series for general test also. So students, when I talk about English, how many students are confident that they are going to score high in English? And how many students are genuinely preparing for a perfect 100 percentile? 200 out of 200. Students, CUET का जो pattern है, actually scoring 100 percentile is very much possible. Last year we have seen many of our students, they have got 100 percentile in English, general test and domain में भी कई सारे subjects में. And believe me students, अगर आप DU के top colleges को target कर रहे हो, तो कम से कम दो सब्जेक्ट्स में 100 परसेंटाइल मारने की कोशिश करो. एंड सी, व्हेन आई टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ CUET, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस वी नीड टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव 45 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स, 50 में से हमें 40 करना है, तो 10 क्वेश्चंस का मार्जिन तो होता ही है. एंड मोर ओवर, इफ आई टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न, CUET का इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी नहीं होता है. सो ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स से दैट इन अ स्पैन ऑफ 45 मिनट्स वी आर एनीवे एबल टू रीड ऑल 50 क्वेश्चंस. हम आराम से सारे के सारे 50 क्वेश्चंस पढ़ पाते हैं स्टूडेंट्स. तो बस उनमें से हमें शॉर्टलिस्ट करना है 40 ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम डैम श्योर हों. एंड थोड़ा सा फंडामेंटल्स पर काम करो. 100% स्टूडेंट्स वी कैन अचीव दिस. एंड ये जो सीरीज है, इसे वॉच करो. टुडे इट बिकम्स द वेरी फर्स्ट वीडियो. सॉरी, in this very first class we are going to discuss 10 most important types of questions, 10 most expected questions. and moreover see, ये जो questions हैं, इनमें से बहुत सारे questions actual last year के CUET के questions भी हैं. I do understand possibly same question may not come, but actually the pattern will remain one and the same. And moreover students, when I'll be discussing the questions with you, I'll not only give the correct answers, but at the same time I'll discuss lots of relevant words, lots of idioms and phrases. आप देखोगे students commonly they will appear in CUET, IPMAT kind of papers. साथ में स्टूडेंट्स हम लोग ग्रामर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उन पर बात करेंगे. हम लोग स्टूडेंट्स साथ में ऐसी हैक्स एंड स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो CUET में अगर आप अप्लाई करोगे ना, आपका देखोगे स्कोर कितना हाई होता है. ओके, तो बस सीरियस हो जाओ, तैयार हो जाओ, बैठो प्रॉपर एक कॉपी और पेन लेकर. एंड जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, सबसे पहले यू पीपल विल हैव टू पॉज एंड कीप गिविंग द आंसर योरसेल्फ. And then you will have to listen to my explanation. Okay, so shall we start now? So here comes the very first question. Okay, very simple, not much time consuming. तो अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है, the best thing is आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा. So choose the correct word, expression from the options given, which means from the very beginning. And students, if you see all the four options, they are actually foreign phrases. And believe me, CUET और IPMAT जैसे papers में कम से कम एक या दो question they will be based on the most common foreign phrases and idioms. And when I talk about foreign phrases, ये topic बहुत easy होता है understand. Actually जो most common 50-60 foreign phrases हैं, once you go through, इनमें से कुछ ना कुछ तो click हो ही जाता है. So students, what is the right answer here? Yes? I guess बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा. द करेक्ट आंसर हियर इज ab initio. अब इन केस अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है, डोंट गिव अप दिस क्वेश्चन. व्हाट यू पीपल कैन डू इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अब आप सोचना स्टार्ट करो कि इंग्लिश में बिगनिंग से रिलेटेड और वर्ड्स क्या हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, एक वर्ड यू पीपल माइट हैव हर्ड, इनिशिएट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएट? टू बिगिन, इनिशिएट, इनिशियल, इनिशिएटिव, isn't it? तो इन सब का मतलब होता है to begin, right? When I say initiate, so students, I can guess. Okay, I can guess.
So the correct answer is second option, ab initio. And moreover, students, it's a Latin phrase. It's a Latin phrase. वहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा that this phrase belongs to which language. No. आपको सिर्फ मीनिंग पता होना है, बस that's it. और ये जो लैटिन फ्रेज है बड़ा कॉमनली यूज होता है इन द फील्ड ऑफ लॉ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट एन एग्रीमेंट विच इज वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब होता है दिस एग्रीमेंट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. दैट इज द मीनिंग एब इनिशियो. नाउ कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन एज इन्फिनिटम. तो स्टूडेंट्स, इन्फिनिटम को अपन रिलेट कर सकते हैं इन्फिनाइट से, इन्फिनिटी से. तो एक्चुअली इसका मीनिंग होता है फॉर एवर, समथिंग विच डज नॉट हैव एनी एंड. तो फर्स्ट ऑप्शन हमें मीनिंग समझ में आ गया, वेल एंड गुड. स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट एड हॉक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड हॉक? चलिए मैं एक मौका देता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा. यू पीपल विल हैव टू गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड हॉक. सो इफ आई से दैट द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट एन एड हॉक कमिटी टू लुक इनटू द मैटर. किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट एन एड हॉक कमिटी. व्हाट डज इट मीन? सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन आई से एड हॉक कमिटी, इसका बेसिक मतलब होता है अ कमिटी विद अ पर्टिकुलर पर्पस. इट इज नॉट अ परमानेंट कमिटी, इट्स अ टेम्पररी कमिटी. इट्स अ कमिटी विद अ पर्टिकुलर पर्पस. और जैसे ही स्टूडेंट्स वो पर्पस कंप्लीट होगा वो कमिटी डिसॉल्व हो जाएगी. सो एड हॉक का मतलब है with a particular purpose or something which is temporary. So that is the meaning of ad hoc. Okay, done. Now students, what is the meaning of a priori? English में एक word आता है prior. So what is the meaning of prior? Yes, something which is already known. तो students, जब मैं कहता हूँ a priori, इसका मतलब है यहाँ पर मैं कुछ conclusion निकाल रहा हूँ, but on the basis of some assumption, some observation, some knowledge which I have already got. तो जो पहले से मुझे पता है, on the basis of that, अगर मैं कोई चीज़ deduce करता हूँ तो उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं a priori. ओके, और इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टूडेंट्स a posteriori. Yes, a posteriori. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. when I say posterior, posterior का मतलब जो बाद में होगा, अंडरस्टैंड. तो प्रायर एंड द अपोजिट इज पोस्टीरियर. तो यस, इन दोनों वर्ड्स को अगर आप समझ जाओ तो इन दोनों फ्रेजेस को गेस करना बिकम्स इजी फॉर अस. ओके, चलिए एक और फॉरेन फ्रेज मैं ले लेता हूं, एड लिब. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड लिब? लिब को स्टूडेंट्स हम लोग रिलेट कर सकते हैं लिबर्टी के साथ. सो व्हेन आई से एड लिब, आई मीन टू से दैट you have got full liberty. You have got the complete choice. Whatever you people want, you can do this. So when I give you a free hand, इसे students हम लोग कहते हैं आज lib. Okay? At the same time, दो phrases जो बड़े commonly पूछे जाते हैं exams में. And possibly you might be knowing the meaning as well. Okay, what is the meaning of mala fide? And एक और option आता है students, bona fide. चलिए, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है. एंड बताओ इनका मीनिंग क्या होता है? मालाफाइड एंड बोनाफाइड. एनीवे स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कहीं पर भी अगर माला आ जाए, द टोन इज नेगेटिव. इसका बेसिक मतलब होता है बैड. ओके, माला का मतलब क्या होता है? बैड. सो व्हेन आई से मालाफाइड, फाइड का मतलब फेथ. सो इन बैड फेथ. सो व्हेन यू डू समथिंग विथ बैड फेथ, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं मालाफाइड. So when I say this person has got some malified intentions, इसका मतलब है this man has got some evil, some ill intentions. Okay? दुर्भावना होना. तो मन में स्टूडेंट्स अगर जेलसी है, कुछ बुरा करने की भावना है, तो डेफिनेटली उसको अपन कहते हैं malified. And the opposite of this, बोना कहीं पर भी आता है तो that becomes good, positive. So in good faith, so that becomes the meaning of bona fide. In good faith. Okay? चलिए स्टूडेंट्स, व्हेन आई सेड कि माला, माल कहीं पर भी आएगा तो दैट इज नेगेटिव. अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर हम लोग माल लेते हैं एज अ प्रीफिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल माल फंक्शनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल माल प्रैक्टिसेस, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन. तो यू पीपल सी इन सब का मतलब वन एंड द सेम है. माल, इट्स अ नेगेटिव वर्ड. ओके, इट टॉक्स अबाउट डेफिशिएंसी, इट टॉक्स अबाउट समथिंग व्हिच इज नॉट गुड. ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं.
malign. Do you know, students, what is the meaning of malign? Okay, what is the meaning of malice? Yes, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें माल बिकम्स द रूट। वो क्या आपको डेवलप करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यू पीपल कैन एक्चुअली फोकस ऑन रूट्स। एंड सीयूईटी में स्टूडेंट्स अगर रूट्स हमें पता है तो कोई नया वर्ड भी आ गया तो हम एक्चुअली उसे गेस कर पाएंगे। तो माय सजेशन विल बी इन द कमिंग डेज हम रूट्स के बेसिस पर वर्ड्स को डेवलप करने की थोड़ी सी कोशिश ज्यादा करें। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 1, कमिंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन। चूज द करेक्ट exclamatory form of the following assertive sentence from the options given. So students, when I say it is a lovely weather, okay, this becomes an example of assertive sentence. Students, CUET में what is more important is you people will have to understand the various types of sentences. Assertive sentence क्या होता है, और इसी को स्टूडेंट्स हम लोग इंडिकेटिव भी कहते हैं, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर we people should know the names of the various types of sentences. So anyway, when I talk about the types of sentences, there are many varieties possible. Interrogative sentences होते हैं where we keep asking questions. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखो exclamatory sentence, okay, पता है ना सबको, जहाँ पर क्या आता है exclamation, okay, wow. So when I say wow, what is this? I'm expressing my emotion. अब उसी तरह से स्टूडेंट्स we need to find out among the 4 options इस assertive sentence का बेस्ट exclamatory sentence कौन सा होगा? So, which is the best answer? Yes, indeed, the correct answer is what a lovely weather it is. Yes. वैसे भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बाकी सब ऑप्शंस को अगर आप कंपेयर करोगे, the very structure of the sentence itself is not correct. But anyway, आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए about the various types of sentences. I'll show you something. Yes. Now see, when I talk about the types of sentences, there are basically 4 types of sentences. The very first one is declarative. And when I talk about declarative, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं indicative. इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं assertive. Okay. So when I talk about the declarative sentence, it makes a statement to convey a message. जैसे for example, it's a class of English. This becomes an example of declarative sentence. If I say I'm Anil Chaudhary, even this becomes an example of declarative sentence. इसी को students assertive भी कहते हैं, understand. Coming on the second one, interrogative, asking question. Okay. So when I say I am Anil, it is declarative. But when I say am I Anil, it becomes interrogative. Exclamatory, what a beautiful house it is. Okay. So you are expressing your emotion, understand. And imperative का मतलब है when you order or when you request. तो स्टूडेंट्स अगर मैं कहता हूँ okay, students please work hard, so this becomes an example of imperative sentence. Try to understand, ये जो word है ना imperative, इंग्लिश में इसका मतलब होता है something which cannot be avoided. Imperative का मतलब है it must be done, it should be done, you cannot avoid it. तो imperative का basic मतलब होता है something which is compelling, something which cannot be avoided. So जब भी अपन कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इन सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं imperative. So if I tell someone, please get a glass of water for me, this becomes imperative. And if I say, get a glass of water for me, even this becomes imperative. Okay? So these are the 4 types of sentences. Then you have 4 more types of sentences. आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा simple sentence. Second is compound, third is complex, and the fourth is compound complex. It is my suggestion to all the students. इन चारों टाइप्स के सेंटेंसेस को अपन एक बार जरूर गो थ्रू कर लें। इस पर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बेस्ड होते हैं। कई बार तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है among the 4 options which is an example of a complex sentence or which is an example of a compound sentence. तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए what does it mean. Okay? तो इसे जज करना बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक बार थियरी पोर्शन गो थ्रू करो, गो थ्रू द मीनिंग्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड डू टेक सम एग्जांपल्स एज वेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3. यस, नाउ इट्स अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स. But now see, this question seems to be simple, but actually the options which are given to us
ओके, फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? हमें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल, बट एक्चुअली कॉल अप, कॉल ऑन, कॉल ऑफ एंड कॉल इन, इन सब फ्रेजेस के अपने यूनिक मीनिंग्स हैं। तो यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मुझे कौन सा फ्रेज यूज करना है। अंडरस्टैंड students, I must tell everyone, special emphasis you people should give to phrasal verbs. When I talk about phrasal verbs, do understand ये basically verbs होते हैं और इनके साथ preposition लग जाता है। तो ये जो group of words बनता है इसी को अपन कहते हैं phrasal verbs। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सोचो कि मैं इनके मीनिंग्स इस तरह से समझ लूंगा कि सर कॉल का मीनिंग ये होता है और अब का मीनिंग क्या होता है वो भी मुझे पता है, तो बस इन दोनों के मीनिंग्स को मैं सेपरेटली समझकर I'll guess what is the meaning of call up. This approach is not going to help us. जिस तरह से इंग्लिश वोकैब में हर वर्ड का अपना यूनिक मीनिंग है, उसी तरह से स्टूडेंट्स यू सी फ्रेजल वर्ब्स में हर फ्रेज का अपना यूनिक मीनिंग होता है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस क्वेश्चन इज नॉट सो टफ, यू पीपल कैन इजीली गेस। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डैश ऑल अपकमिंग मीटिंग्स इन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। स्टूडेंट्स, मीटिंग्स को हम क्या करते हैं? या तो बुलाते हैं या फिर उसे कैंसिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं तो इट इज़ नोन एज कॉल ऑफ। सो कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल करना। तो इफ आई रीड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, द ओनली वन फ्रेज विच इज पॉसिबल इज कॉल ऑफ। स्टूडेंट्स, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन। जब आप पर्सनली जाकर किसी से मिलते हैं, व्हेन यू कॉल ऑन समवन, that means personally you are visiting someone. Okay, so that is the meaning of call on. Call in का मतलब होता है to summon someone. Yes, किसी को बुलाना। understand. तो जब आप किसी को बुलाते हैं तो that is known as call in. And call up का इसके तो बहुत सारे meanings होते हैं। Call up का मतलब किसी को फोन करना भी हो सकता है, किसी को कोई चीज याद दिलाना, even that means call up. Okay, understand. ऐसे बहुत सारे possible meanings हैं। But here the best answer is third option because call off का मतलब होता है cancel करना। Okay, do understand. चलिए, coming on students, one direct question which is based on vocab. A word is given to us and we are supposed to find out antonym. My sincere advice to everyone. Sorry. कई बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ये ढंग से नहीं पढ़ते हैं कि सर मुझे एंटोनिम पता करना है या सिनोनिम। So my advice to all the students, read it properly. I do understand, एग्जाम में कई बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं, कई बार टाइम का प्रेशर होता है, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप जितने पीस ऑफ माइंड से इन एग्जाम्स को दोगे और जितना कैजुअली चलोगे, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि नहीं सर CUET है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सर कॉलेज में सिलेक्शन होना ही चाहिए। इफ यू गो विद दिस काइंड ऑफ एंजाइटी, योर परफॉर्मेंस विल एक्चुअली कम डाउन। सो माई सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, डोंट गो विद एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, just enjoy the paper, go with a casual approach, just to see that आप unwanted time waste ना करें। बट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, इस पर्पस के साथ हमको नहीं जाना है। आप जाओ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ही होगा। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड्स, dwindle, dwindle का अपोजिट बताना है। अब कई बार स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन द वर्ड dwindle एंड स्टूडेंट्स ने जैसे ही देखा कि सर ये वर्ड तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dwindle, एंड विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस द स्टूडेंट्स लीव दिस क्वेश्चन, विच इज अ वेरी बैड आइडिया। आप एक बार ऑप्शंस तो देखो, एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस विल एक्चुअली हेल्प यू, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सब में आप देखोगे ऑप्शंस विल एक्चुअली हेल्प यू। द स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट dwindle, diminish, हमें पता है व्हाट डज इट मीन, shrink, इवन दिस इज वी पीपल नो, श्रिंक का मतलब भी एक तरह से डिमिनिश होना, और डिक्रीज का मतलब भी कम होना। तो ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनका मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, एंड देयर इज ओनली वन वर्ड विच इज ऑड वन आउट। तो यस, आई कैन इजीली टेक अ रिस्क ऑन दिस इवन इफ द मीनिंग ऑफ dwindle इज नॉट नोन। सो एनीवे स्टूडेंट्स, dwindle का मतलब होता है डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, देखिए कमजोर होना, एंड द बेस्ट अपोजिट हैपेंस टू बी इंक्रीज। So it's a very simple word. Okay, done. Chalo, coming on the next question. Now coming on a question based on direct and indirect speech. And मान के चलो students, CUET में 1 or 2 questions will be based on this. So active and passive voice and direct and indirect speech. ये बहुत ही important areas हैं
And once you, if you go through all the common rules, I guess giving the correct answers will not be so tough. The students, one sentence is given to us जो indirect speech में है, and हमें बताना है चारों में से कौन सा आंसर सही होगा. Yes, what is the correct answer? सबसे पहले what you people have to do is you have to read the sentence to identify what is the tense of the sentence. My suggestion to all the students, आप tenses जो chapter है ना, इसे ignore मत करो. In case students, if your grammar is not very good, at least 3-4 chapters you people should master. One is subject and verb agreement, second is tenses, third is preposition, and उसके बाद अगर मैं देखूं तो direct, indirect speech and active and passive. अगर ये 5 टॉपिक्स भी अपन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें तो CUET और IP मैथ में जितने क्वेश्चंस आते हैं 90-95% questions will belong to these 5 chapters only. Okay? The students see, when I say the supervisor confirmed, so this actually becomes a sentence of simple past. That is the reason अगर मैं यहाँ पर said लेता हूँ, ये बिल्कुल सही है, understand. Okay? और this becomes a sentence of direct speech in which ये जो verb है, this is actually known as reporting verb. And students, ये जो quote unquote के अंदर हमने जो sentence लिखा है, it is known as reported speech. Okay, do understand. So this is the reporting verb. ये बिल्कुल past tense में आएगा because confirmed is given, which is in past tense. Now coming on. Students, एक चीज आप समझ लेना. Reporting verb जब past में होता है, तो ये जो reported speech है, जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो एक्चुअली उसका टेंस चेंज हो जाता है. एनीवे स्टूडेंट्स, ये अपने आप में बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है. आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस मच हियर, बट स्टूडेंट्स हम अपनी क्लासेस में तो बहुत डिटेल से बताते ही हैं. आई रिपीट व्हाट आई मीन टू से. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, अगर ये पास्ट टेंस में है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो टेंस हमेशा चेंज होता है. अंडरस्टैंड. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, द ऑफिस मेमो वॉज एन ओरिजिनल वन. इसका मतलब है मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज किया, वॉज एन ओरिजिनल वन. इवन दिस बिकम्स सिंपल पास्ट. अब सोचो स्टूडेंट्स, इस इनडायरेक्ट स्पीच को जब मैं डायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो आई वॉन्ट टू हैव अ सेंटेंस विच इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे यहाँ पर ऐसा रिपोर्टेड स्पीच चाहिए विच इज एक्चुअली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, इस लेने में कोई दिक्कत नहीं है. वॉज नहीं आएगा. हैज बीन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर मैं हैज बीन लेता हूँ, इवन दिस बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट, तो इवन दैट इज नॉट करेक्ट. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट द ऑफिस ऑर्डर इज लेने में कोई दिक्कत नहीं. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ में से है. और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, द सुपरवाइजर सेड कॉमा कॉमा, ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, द ऑफिस मेमो इज एन ओरिजिनल वन एंड द ऑफिस ऑर्डर, यहाँ पर क्या लिखा है, मेमो. तो जब मेमो लिखा है तो मैं उसे ऑर्डर क्यों बनाऊंगा. तो एनीवे स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, आई गेस सभी स्टूडेंट्स ने अच्छी तैयारी की होगी. नहीं भी की है तो प्लीज फोकस ऑन दिस. 30-40 मिनट्स आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को दोगे ना, अपने आप स्टूडेंट्स आप देखोगे आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाएगी. एनीवे, ये सारे सेशंस हम लोग अपनी क्लासेस में लेते रहते हैं. एंड ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू पीपल, द नंबर इज गिवन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन. यू पीपल कैन एक्चुअली गेट इन टच विद अस, या फिर आप सिंपल सा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें वॉट एवर क्वेरी और वॉट एवर इंक्वायरी यू वांट टू हैव, वी विल गेट इन टच विद यू. ओके, चलिए. सो द करेक्ट आंसर हियर इज फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन इंग्लिश ग्रामर. 4 sentences are given to us and हमें बताना है किस सेंटेंस में एडवर्ब का यूसेज गलत है. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, वी पीपल शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश देयर आर 8 parts of speech, isn't it? So noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition and interjection. So all the students will have to understand the definitions of these 8 parts of speech. And moreover students, हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि what are the 8 parts of speech, but at the same time इनमें भी बहुत सारी categories होती है. So when I talk about a noun also, proper noun, common noun, countable, uncountable, abstract, material, we people should know, because CUET is a kind of paper
जहां पर ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी बनते हैं. एडवर्ब सबको पता होगा. These are the words which actually show the quality of a verb, isn't it? बट एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन है वो इससे भी बहुत एलाबोरेट है. स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखना, दो वर्ड्स में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं. वन इज एडजेक्टिव एंड वन इज एडवर्ब. Adjectives are the words which show quality of a noun or a pronoun. Understand? तो जब मैं सिर्फ नाउन या pronoun की क्वालिटी दिखाता हूं, that becomes an adjective. But adverbs, they show the quality of anything. They show the quality of anything except a noun or pronoun. So you people try to understand. कोई एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी भी दिखा सकता है, बट एट द सेम टाइम कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी भी शो कर सकता है. कोई एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी भी शो कर सकता है. इट कैन शो द क्वालिटी ऑफ अ कंजंक्शन ऑल्सो, अ प्रपोजिशन ऑल्सो. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. एडवर्ब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जो वर्ब की क्वालिटी शो करे. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये बहुत एलाबोरेट है. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, वी शुड ऑल्सो नो द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, ऐसे बहुत तरह के adverbs. CUET में ऐसे questions आप देखोगे commonly पूछे जाते हैं, right? चलिए, coming on to this particular question. फिलहाल students, if I talk about the adverbs here, यहाँ पर usually है, यहाँ पर never है, यहाँ पर neither है, and यहाँ पर loudly है. So these are the 4 adverbs. Okay? Right? चलिए, अब कौन सा सेंटेंस गलत है? स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ही यूजुअली विजिट्स. ये तो बिल्कुल सही है. द चाइल्ड क्राइड लाउडली, ये भी बिल्कुल सही है. आंसर इन दोनों में से एक है. एंड द करेक्ट आंसर इज नेवर आई विल सी हर अगेन. स्टूडेंट्स, बी इज द राइट आंसर बिकॉज अगर मैं सेंटेंस को नेवर से स्टार्ट करता हूं तो स्टूडेंट्स लिखने का तरीका होना चाहिए विल आई. Never will I see her again. Okay? Otherwise, students, you can write in this manner. I will never see her again. So, students, try to understand. कभी भी never I will कहना is not correct. The structure of the sentence will be like this. अगर मैं sentence को never से start करता हूँ, ये जो helping verb है will, it will actually come before the subject. इसे students हम लोग inversion करते हैं, कहते हैं. Inversion का मतलब क्या होता है? The meaning of inversion is where the helping verb is coming before the subject. And it happens when a sentence starts with never and there are some other words. जैसे for example कोई sentence no sooner से start होता है. Okay, कोई sentence hardly से start होता है. कोई sentence seldom से start होता है. तो do understand, ऐसे cases में हम लोग helping verb को हमेशा subject के पहले लेते हैं. So students, never will I, this becomes the right answer. I will never, ये भी बिल्कुल सही है. अगर आप never को बीच में लेते हो, there is no problem at all. तो subject, helping verb, will, और उसके बाद never. Okay? तो I will never, ये भी सही है. Never will I, ये भी सही है. लेकिन never I will, this is not correct. So students, do understand the correct answer is second option. Anyway students, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. डिटेल से पूरा कॉन्सेप्ट ले पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट स्टिल आई एम गिविंग यू सम हिंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू पीपल कैन डिसाइड कि मुझे कितना डेप्थ में जाना है. ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7. नाउ दिस बिकम्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस. ओके, देयर इज वन सेंटेंस व्हिच हैज बीन ब्रोकन इनटू 5 पार्ट्स एंड यू पीपल हैव टू अरेंज दीज पार्ट्स टू मेक अ लॉजिकल सेंटेंस. ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. नॉट मेनी, बट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एनीवे स्टूडेंट्स, एक बार आप इन सभी पार्ट्स को एज इट इज पढ़ो एंड देन यू डिसाइड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, क्या लगता है विच इज द बेस्ट आंसर? यस, चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ. यू पीपल विल हैव टू सॉल्व इट एंड यू विल हैव टू टाइप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, अच्छी तरह से इसे पॉज करो, सॉल्व करो एंड टाइप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ऐसे क्वेश्चंस एक्यूरेसी वाइज बहुत अच्छे होते हैं. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होते हैं, बट कम से कम कोशिश करो कि आंसर गलत ना हो. ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8. चूज द सेंटेंस दैट इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस.
So 4 sentences are given to us and we need to find out active voice का sentence कौन सा होता है. I guess थोड़ा बहुत active and passive voice अगर आपने पढ़ा है तो identify करना बहुत मुश्किल नहीं है. Anyway, students, why did Sheila jump over the wall? So here, students, Sheila is the doer of the action और मैं शीला को starting में ले रहा हूँ. So yes, the correct answer is first. This sentence itself is an active voice. Second, अगर मैं लेता हूँ, the mouse was first seen by Kostab. Try to understand, mouse becomes the object. देखने वाला कौन है? Kostab. And mouse becomes the object. But वो जो object है, जब मैं उसको as a subject use करता हूँ, that becomes a sentence of passive voice. Students, मैं sentence को start किससे कर रहा हूँ? Mouse. Mouse was seen, understand. So this becomes an example of passive voice. हाँ, मैं अगर ऐसा लिखता, Kostab saw the mouse, तो ये active voice होता. Okay? So anyway, a new shopping complex was built. Passive voice. Look, the page was torn by Sudeep. हाँ, अगर मैं लिखता Sudeep torn the page, तो active voice होता. Anyway, students, the correct answer is first option. चलिए, coming on the second last question, a fill in the blank is given to us, a sentence is given to us, and among the 4 idioms, we need to find out. Okay, कौन सा यहाँ पर fit होगा? The students, idioms and phrases, they play a very, very important role. जितने idioms और phrases आप कर सकते हो, करने की कोशिश करो. कम से कम 400, 500 तो हमको करके ही जाना है, understand. चलिए, the boy dash to the pleadings of his well-wishers. So which is the correct answer? Yes, yes, yes. Come on, students. The boy dash to the pleadings of his well-wishers. Pleadings का मतलब क्या होता है? Yes. Request करना. Okay, appeal करना. Understand. चलो, coming on the very first one. Turned a new leaf. इसका मतलब होता है students to change for a better. To change for a better. तो किसी अच्छी चीज के लिए जब हम बदलाव लाते हैं, कुछ बेटर चेंज लाते हैं, तो इसे स्टूडेंट्स अपन कहते हैं टर्न द न्यू लीफ. सो दिस इज पॉजिटिव, बट एनीवे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आई डोंट थिंक सो ये फिट होगा. ओके, आप हमेशा कोशिश करो कि सेंटेंस को पढ़कर यू पीपल शुड गेस व्हाट पॉसिबल काइंड ऑफ फ्रेज इज नीडेड देयर. ओके, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज नीडेड देयर. द मोमेंट यू गेस दैट एंड देन इफ यू कम ऑन द ऑप्शंस, एक्चुअली गेटिंग द आंसर विल बिकम ईजी फॉर अस. आप सबसे पहले खुद ही गेस कर लो कि इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, द बॉय डैश टू द प्लीडिंग्स ऑफ हिज वेल विशर्स. तो मुझे लगता है उनके वेल विशर्स ने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की होगी, प्लीज़ तो ऐसा मत कर, ठीक है, प्लीज़ डू दिस. पर फिर भी उस बॉय ने नहीं सुना. इजंट इट? तो सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है बॉय इग्नोर्ड द प्लीडिंग्स ऑफ द वेल विशर्स. तो आप सोचो स्टूडेंट्स, मुझे इग्नोर के लिए तो बहुत अच्छा सा फ्रेज चाहिए. Cut loose. What is the meaning of cut loose? इसका बेसिक मतलब होता है when you give up, when you leave control of something. तो जब स्टूडेंट्स आप किसी चीज पर आपका जो कंट्रोल था उसे छोड़ देते हैं, अंडरस्टैंड. when you leave it, understand. Okay, so that is the meaning of cut loose. Okay, coming on, became black and blue. ये बेसिकली अपन यूज करते हैं जब किसी को चोट लग जाए. if there is some wound, okay, तो स्किन का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है. so that is to become black and blue. And turn the deaf ear. Yes, deaf का मतलब क्या होता है? Was not able to listen. So when I say turned a deaf ear, इसका मतलब है अनसुना कर देना, ignore कर देना. So here students, the best answer is fourth option. And now students, coming on the last question of the class, question number 10. Where a sentence is given to us and that has been divided into 4 parts. We need to find out which part of the sentence is grammatically not correct. And the worst scenario is no error भी दे रखा है. तो जहां पर भी स्टूडेंट्स ये ऑप्शन आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो हो ही जाता है. चलो, it is always a good idea to open the light after sunset. No error. What is the correct answer? Yes, yes, yes. And these options are given to us. Right? So what is the correct answer? It is always. मुझे लगता है इसमें तो कोई मिस्टेक हो नहीं सकती. A good idea. ये भी बिल्कुल ठीक है. To open the light. I think students हम लोग क्या कहते हैं? Okay, light को on करना. To switch on the light. To turn on the light. Rather than to open the light. And especially British system में students हम open the light कभी नहीं कहते. हाँ, US pattern में, US की लैंग्वेज में हम लोग फिर भी
ओपन द लाइट, वहां पर ये फ्रेज यूज होता है. बट अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से बात करूं, ओपन द लाइट इज नॉट करेक्ट. वी एक्चुअली टर्न ऑन द लाइट. So I think C is not correct. So third option becomes the correct answer. So anyway students, thank you very much. आपने इस पूरे वीडियो को देखा and whatever discussion we people have done, I'm very sure बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी and बहुत सारी चीजों के बारे में ये पता चल गया होगा and what eventually we people will have to do. So do understand, grammar पर अच्छा सा knowledge develop करो. Okay, get into the depth of grammar. Try to understand the definitions. Try to understand the various types of parts of speech. At the same time, direct, indirect, and active and passive. थोड़ा बहुत idioms and phrases पर भी काम करना start करो. Foreign phrases are also very, very important. ऐसे बहुत सारे questions and confidence अगर लाना है, best तरीका, ऐसे बहुत सारे questions solve करो. तो students, see you very soon in the next video. And अब अगर ये discussion पसंद आया, तो please don't forget to subscribe the channel, like the video, and keep sharing with your friends as well. See you very soon tomorrow with some new and interesting more questions on CUET English. Thank you very much. See you soon.